Hello everyone. So as we are nearing the end of the year and we are approaching fast towards prelims, so we are left with just 1 month to prepare holistically for UPSC mains. So in today's video, we are going to explore what can be our approach for the mains preparation in the last month. Then we will also discuss that how we can study integratedly for prelims and mains in the January and February month. And next, we will also discuss how we can have a smooth transition towards our prelims preparation and the ideal time that we can devote to the each subjects for the prelims preparation. So first of all, the prelims falls on the May 25th of the 2025 and December is the only month that we can prepare for the mains specifically. So in this month, what can be our approach? First of all, if you are left with your optional and GS subjects, so optional तो we have to prioritize, but GS में आपको GS में मेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं कुछ सेक्शंस लाइक सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, ये सब आपको प्रायोरिटाइज करना है. So now what about the major subjects like polity, history, economics, geography and science and tech? So in this video I am going to tell you that how you can prepare integratedly for such subjects. So like for me, January and February I have kept it for integrated study. For the people who are in their first or second attempt, it may not be possible for them to understand this thing that I am going to tell them, but at least I will make it easy for you to understand that how you can have an integrated approach towards prelims and mains. So अब यहाँ पे I am going to tell you some of the things that you have to keep in mind. First of all, your optional should not be stretched beyond December. And why I am saying this? अब इसके दो reasons है. First of all, January to May, we have just 5 months to prepare for the prelims. And within that, we have to prepare GS के सारे subjects. हमें previous से question करने होंगे nearly 30 years के. Then we have to attempt some of the mocks, 30 to 40 mocks we have to give. Then CSET is the major hype, जिसमें हमें CSET के भी टेस्ट लगाने होंगे, CSET के previous से questions भी करने होंगे. And then we also have to cover the syllabus for the CSET. नेक्स्ट PT 365. अब करंट अफेयर्स भी हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो PT 365 मोस्ट ऑफ अस प्रायोरिटाइज, तो वो भी आपका एक मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस है. नेक्स्ट सेकंड इसका रीजन है कि जिस टाइम अगर आपका ऑप्शनल दिसंबर में कवर्ड नहीं है, अगर आप अपने ऑप्शनल को जनवरी और फरवरी तक स्ट्रेच करते हैं, तो यू विल सी एवरीवन अराउंड यू विल बी प्रीलिम्स फोकस्ड. और हर कोई क्या कर रहा होगा, हर कोई मॉक्स लगा रहे होंगे, हर कोई MCQs प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंड यू विल बी सिटिंग विद योर ऑप्शनल. सो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. दैट इज वाई December is the month that you have to give for your optional in case you are not ready for your optional. Next, second thing is how you can study integratedly for the prelims and mains. January and February. For me, first of all, I will study the polity first. Polity, why? As polity is a very interesting subject, so I have chosen polity first. So what I would do is कि polity में specifically firstly I will study union. अब यूनियन के अंदर हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब टॉपिक्स आई एम गोइंग टू स्टडी. अब व्हाट आई वुड डू इज कि कंटेंट जब मैं रीड करूंगी प्रीलिम्स के लिए, उससे पहले आई विल ऑल्सो रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स. आई विल जस्ट हैव अ क्विक गो थ्रू टूवर्ड्स द प्रीलिम्स MCQs. ठीक है, तो उससे व्हाट आई वुड लर्न इज मुझे पता चलेगा एरियाज ऑफ फोकस. एंड अभी जब किसी का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होता है, तब तक तो उसको बहुत पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है. ठीक है, तो सेकंड थिंग में व्हाट वी हैव टू डू इज हमने प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस देखे, उसके बाद हमने अपना कंटेंट रीड किया. देन व्हाट वी हैव टू डू इज हमें मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं. अब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप ये अप्रोच फॉलो करें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप अभी जनवरी के बाद आप सिर्फ अपने प्रीलिम्स पे ही फोकस करिए, और ये जो मेंस वाला पार्ट है
reading the previous year question and understanding them, making structures of the previous year question, that part you can skip. क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इन केस इफ यू आर डूइंग दिस यू आर टेकिंग अ रिस्क, ठीक है. सो ये सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले यू कैन डू इट, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेडली प्रिपेयर करना है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. नेक्स्ट, अब ये जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाउ यू हैव टू डू इज कि व्हाट आई विल डू इट. अगर मैं 4 घंटे मैंने पॉलिटी के लिए डिसाइड किया दैट आई विल स्टडी पॉलिटी 4 आवर्स, ठीक है, तो व्हाट आई वुड डू, आई विल स्टडी फॉर 3.5 आवर्स एंड द लास्ट 30 मिनट्स आई विल जस्ट सिट एंड सोल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से हैं यहाँ पे मेंस के, एंड इनको सोल्व कैसे करना है, लाइक आई विल रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन and then I will think about the dimension that I can add in those answers. So this is how we can study integratedly for prelims as well as mains. Next, अब जब आप इतना सीख जाते हैं that how to break the questions into the parts and dimensions that the question requires, that gives you confidence. क्योंकि to be very honest, earlier I was very fearful of mains. Why? Just because of answer writing. But by this year I learned answer writing, how you have to do answer writing and how you have to understand that what is the requirement of the question. अगर आपने requirement को समझ लिया, that means you know how to write an answer. उसके बाद सिर्फ आपके पास time management and जो आपकी speed है वो आपको adjust करना होता है accordingly पूरा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके. लेकिन जो आंसर राइटिंग का जो फियर और इनर्शिया होता है वो आपको, अगर आप एक बार ये जो आंसर्स की क्वेश्चंस की डिमांड फुलफिल करना आपको आ जाता है, दैट मीन्स यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. नेक्स्ट, एज आंसर राइटिंग, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास कितने हैं. अब जैसे हमारा जीएस है, जीएस पेपर है, अब उसके 10 साल के अगर हम एक जीएस 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के देखें तो 10 into 20 कितने क्वेश्चन हुए, 200. कैन वी राइट ऑल ऑफ देम? नो वी कैन नॉट. हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है. सो दैट इज वाई अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट गो थ्रू देम एंड मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन टुवर्ड्स प्रीलिम्स. अब सबसे पहली बात तो रेगुलरली आपको क्या करना है, पोस्ट जनवरी से अप्रैल आई हैव कैलकुलेटेड द 120 डेज, ठीक है. जनवरी टू अप्रैल वी हैव 120 डेज. You have to do 20 previous year questions every day. अब ये previous year questions को आपको solve करना है, कैसे करना है, analyze कैसे करना है, I will tell in a different video. But यहाँ पे what I'm going to tell you कि आपको regularly 20 questions prelims के every day करने हैं. इससे क्या होगा कि अगर 120 days में आप 20 question हर रोज कर रहे हैं, that will turn out to be 2400 questions. अब 2400 question है let's say, और एक पेपर में कितने 100 questions होते हैं हमारे पास, तो यानी कि हम 24 पेपर्स अपने सोल्व कर पाएंगे ऐसे, अगर हम रोज 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं. दैट आई हैव टोल्ड यू वेरी मिनिमम. अब जो आपके जो मॉक्स आप लगाएंगे और जो प्रीलिम्स के आप पेपर सोल्व करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू डू दीज 20 क्वेश्चंस. अब ये 20 क्वेश्चन क्यों करने हैं आपको, क्योंकि यहाँ से ना आपका ये जो फ्लो होता है ना क्वेश्चंस को सोल्व करने का, यहाँ से ये बनेगा, ठीक है. तो यू हैव टू डू 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी डे. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. अगर जो आप ये जो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने रोज करने का बोला है, इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस नहीं होते हैं बट द क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है. तो वो आप डिफरेंस आप तब देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. नेक्स्ट, अब जैसे 100 क्वेश्चन हमारे पास 2 घंटे में होते हैं सोल्व करने के लिए 100 क्वेश्चन, तो हम 1 घंटे में अगर ये 20 क्वेश्चन कर ले दैट वुड बी वेरी मच, ठीक है, वो बहुत इनफ होगा हमारे लिए. और ये आपको करना कब है, जब आप बोर्ड फील कर रहे हो. लाइक अगर 4 आवर्स वी आर स्टडिंग द पॉलिटी, 3 आवर्स के बाद इफ यू आर फीलिंग एग्जॉस्ट एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो उस टाइम पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये एक तो आपको आपके माइंड को एंगेज रखता है, ठीक है, और ये मेंटल मैथ की तरह होते हैं क्वेश्चंस, तो वो अच्छा लगता है आपको. नाउ आई विल लाइक टू से वन थिंग हियर
It may sound hypocrisy to you all that the person who herself has not qualified the prelims is letting you know that how to go about it. But trust me, approach matters, and that comes from experience and with attempts. जो हम जैसे जो छोटे 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 टाउन से जो लोग आते हैं, 3-4 अटेम्प्ट में जब गलतियां हम बहुत सारी कर लेते हैं, उसके बाद हमको समझ आता है कि इस अटेम्प्ट की रियल अप्रोच क्या होती है. सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड. नेक्स्ट, now we'll discuss about the time management for the prelims and ideal time that one can devote for the each subject. Here I am letting you know my timetable. You can adjust accordingly and you can prioritize your subjects accordingly. Next, for January I have kept it for polity and economics. So what I am going to do is कि 15 days each, यानी कि एक सब्जेक्ट को 15 दिन देने और दूसरे सब्जेक्ट को भी 15 दिन देने. पॉलिटी 15 डेज एंड इकोनॉमिक्स 15 डेज. अगर मैं 4 घंटे भी रोज पढ़ रही हूँ तो भी वो इजीली कवर हो जाएगा, पॉलिटी भी और इकोनॉमिक्स भी. देन अभी यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए करनी ही होती हैं, दैट आई एम लेटिंग यू नो है. प्रीवियस क्वेश्चन का मैंने आपको बताया, अगर 20 क्वेश्चन एवरी डे वी आर डूइंग, दैट विल टेक अर 1 आवर. देन मॉक टेस्ट अगर हम कर रहे हैं अटेम्प्ट, अब मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली अटेम्प्ट नहीं करने हैं. मॉक टेस्ट आपको कैसे करना है कि अगर आपके पास 50 क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट है तो आप वो वीक में 4 भी लगा सकते हैं. ठीक है, 4 पेपर्स इन अ वीक. अगर आपके जो पेपर में 50 क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन है, देन यू कैन गिव 2 मॉक टेस्ट पर वीक. ठीक है. नेक्स्ट, सी सेट यू हैव टू डू कंपल्सरीली. अब ये 2 घंटे हमें मिनिमम सी सेट को देने ही देने हैं, क्योंकि सी सेट इज ऑल्सो अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ दीज डेज. देन रिवीजन के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा रोज देना है. अब रिवीजन क्यों जरूरी है? अब देखो, हम प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे डेटा, बहुत सारा फैक्ट्स हम पढ़ते हैं. ठीक है, और अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हम पीछे वाला भूलते जाते हैं. ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चीजें एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने पढ़ा तो था पर आपको याद नहीं आ रहा है. तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें रिवीजन अगर हम अच्छे से करेंगे तो ये केस हमारे साथ नहीं होगा, और इन केस अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो ये हमारे साथ होता है. नेक्स्ट, अब करंट अफेयर्स मैगजीन अगर कुछ लोग करना चाहे वो ऑप्शनल होती है, अदरवाइज यू कैन फॉलो द PT 365. ठीक है, जो फेब्रवरी के बाद ही आती है मोस्टली. देन फेब्रवरी मंथ के लिए आई हैव डिसाइडेड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब 10 डेज ईच आई हैव डिवोटेड टू देम. अब ये तीनों साथ में क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट कनेक्टेड है, देन एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़े बहुत कनेक्टेड रहते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन जस्ट 1 मंथ फॉर ऑल 3 ऑफ देम. देन मार्च आई हैव गिवन होल ऑफ द मार्च फॉर द हिस्ट्री में एंशियंट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, देन मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, अब मेडिवल के लिए आपको ल्यूशन भी पढ़ना होता है और सतीश चंद्रा भी यू कैन फॉलो, और एंशियंट के लिए डेफिनेटली आपको थीम्स भी पढ़ने होते हैं और ल्यूशन भी पढ़नी होती है, क्योंकि ल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में. एंड लास्टली PT 365. अब PT 365 ये कैसे करना है आपको? अब मैं अगर 7 डेज ईच ये तीनों को दे रही हूँ, ठीक है, इट टर्न्स आउट टू बी 21 डेज. तो यहाँ से मार्च के 10 दिन बाकी बचे हैं. ठीक है, तो इन 10 दिनों में आई कैन प्रायोरिटाइज द PTs. और या फिर हम क्या कर सकते हैं, संडे में अगर हम हाफ ए डे ब्रेक ले रहे हैं तो उस टाइम पे हम करंट अफेयर्स यानी कि अपने PTs को फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट, अभी मैंने अप्रैल और मई के बारे में क्यों नहीं बताया है? क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों सब्जेक्ट को जो मैंने अभी आपको बताया टाइमलाइन, इनको कवर करने के बाद आपको जस्ट यही साइकिल में रिपीट करके रिवीजन करना है. और उसमें क्या करना है आपको, लेट्स से अप्रैल में व्हाट आई वुड डू इज कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स. अब यहाँ पे मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ा था, देन यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ज्योग्राफी. देन उसके बाद जब ये यहाँ पे था एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड आई विल ऑल्सो एड 1 पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इन नेक्स्ट मंथ. सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिवाइज. अब मॉक टेस्ट का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉक टेस्ट का आप किसी टेस्ट सीरीज के साथ अलाइन कर सकते हैं. लाइक जो भी मार्केट में 1 से 2 टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं. एक टेस्ट सीरीज में 35 नियरली क्वेश्चंस मॉक्स आते हैं, तो आप एक टेस्ट सीरीज को भी कोई भी एक को अलाइन कर सकते हैं. और अगर 50 क्वेश्चंस हैं टेस्ट सीरीज उसमें मॉक में, तो आप 4 टेस्ट पर वीक लगा सकते हैं. और 100 क्वेश्चंस है तो आप 2 टेस्ट पर वीक आप लगा सकते हैं. एंड वन मोर थिंग इज कि इट टेक्स 1 आवर
to give you the test, and To do that, you'll need to be online. need to be online. sorry, then for 2 hours you will analyze the test. Then lastly I will say one more thing, that please do not try to read 2 subjects per day. अब it may be a different approach for you, but I am letting you know from my experience कि हमें 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने का ट्राई नहीं करना चाहिए प्रीलिम्स के टाइम पे. अब इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखो प्रीलिम्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है. हमें जीएस पढ़ना होता है, देन सी सेट, प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक्स, करंट अफेयर्स. दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स. ठीक है. अब देखो हमारे पास रेगुलर टाइम कितना होता है, 10 से 12 घंटे. अब 10 से 12 घंटे में कितने सेक्शन हो गए, आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 4 5 सेक्शंस हो गए. ठीक है. अब ये 4 से 5 सेक्शंस को हम 2 घंटे ईच अगर हम दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि या तो हमारा जो चैप्टर कोई चल रहा होगा उसका फ्लो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो आधा ही चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा और हमारा जो 2 घंटे का टाइम शेड्यूल है वो कवर हो जाएगा. सो दैट इज वाई हमें ना तो कभी भी टाइम को ऐसे कि 2 आवर्स ईच, क्योंकि इससे करने से क्या होता है कि इन केस अगर आपका कोई चैप्टर मिड ऑफ द चैप्टर में अगर आपका टाइम ओवर हो जाता है तो आपको वो छोड़ना पड़ता है. उससे एक तो आपकी क्यूरियोसिटी खराब होती है, ठीक है, और उससे आपका फ्लो छूट जाता है फ्रॉम द सब्जेक्ट, और उससे फिर इंटरेस्ट नहीं आता है. फिर आप जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो जो आपकी क्यूरियोसिटी लेवल है वो कम होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका टारगेट मिस हो गया. सो दैट इज वाई आई विल जस्ट से कि आप जीएस का कोई एक सब्जेक्ट ही प्रायोरिटाइज करो. So lastly, I will say just thank you for listening to me patiently. और मैंने जितना भी आपको बताया, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से बताया है, इन केस अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये अप्रोच सही नहीं है, तो you are very free to choose your own priorities and your own approach. So this was all from my side. Thank you so much.